السلام علیکم، میں ہوں صوفیہ سردار۔ آپ دیکھ رہے ہیں آر ٹی وی۔ آج کی سٹوریز کا آغاز کرتے ہیں آر ٹی وی کی اسپیشل رپورٹ سے۔ توبہ ٹیک سنگھ کے سپوت پاکستانی نژاد امریکی شہری طاہر جاوید تمغہ امتیاز کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی نژاد امریکی شہری طاہر جاوید کو تمغہ امتیاز ان کی کن خدمات پر دیا گیا۔ تقریباً 3 دہائی بیشتر اپنی جیب میں صرف $500 لے کر امریکہ پہنچنے والے طاہر جاوید ایک اسٹور سے 30 بڑی کمپنیوں کا سفر طے کر کے آج ایک ممتاز پاکستانی امریکن بزنس مین کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی کمپنیاں ہیلتھ کیئر، پاور جنریشن، ڈسٹریبیوشن اور کرپٹو مائننگ کے شعبوں میں ملکی معیشت کا اہم حصہ ہیں۔ طاہر جاوید نے امریکی انتخابات میں مختلف عہدوں پر انتخاب لڑنے والے اہم افراد کی انتخابی مہم میں بھرپور کردار ادا کیا۔ خاص طور پر سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں ہلری کلنٹن کے ساتھ نیشنل فائنانس ایڈوائزر کے طور پر کام کیا۔ انہوں نے موجودہ صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم کی ریاست ٹیکساس میں قیادت کی اور قومی سطح پر مسلمز فار بائیڈن کے پلیٹ فارم کو متحرک کیا۔ آپ نے سن 2018 کے انتخابات میں کانگریس مین کا الیکشن لڑا اور رنر اپ رہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورے امریکہ کے موقع پر کیپٹل ہل میں ان کے اعزاز میں ہونے والی اہم تقریب کو طاہر جاوید نے اسپیکر نینسی پیلوسی کے ساتھ مل کر ہوسٹ کیا۔ اس تقریب میں 50 اراکین کانگریس اور 6 سینیٹرز نے شرکت کر کے نئی تاریخ رقم کی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنا طاہر جاوید کی ترجیحات کا اہم حصہ ہے۔ اس حوالے سے ان کا 2 اہم امریکی سینیٹرز کرس وان ہالن اور میگی حسن کو پاکستان اور بھارت کے دورے پر لے جانا اور کشمیر ایشو کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ طاہر جاوید نے کانگریس میں پاکستان کوکس کو متحرک کرنے، پاکستان کوکس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے اور 50 اراکین کانگریس کو کوکس کا حصہ بنانے میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ طاہر جاوید آج کل امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی حجم کو بڑا کرنے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے میں کوشاں ہیں۔ ان کی انہی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں ساہیوال کا۔ ساہیوال کی تاریخ کے عظیم دانشور اور صحافی راغب علی سعید کی 30ویں برسی کے موقع پر ایک عظیم و شان سیمینار کا انعقاد تحصیل کونسل ہال میں کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی عقیل اشفاق، ڈائریکٹر تعلقات عامہ ڈاکٹر ریاض ہمدانی، ڈائریکٹر آرٹ کونسل ڈویژنل پریس کلب کے صدر سید طمطراق شاہ محسن شاہی سمیت کثیر تعداد میں صحافیوں اور دیگر سیاسی، سماجی و مذہبی تاجر و کرسچن کمیونٹی نے شرکت کی اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ آخر میں سید راغب علی شاہ کے نام سے منسوب شیلڈ تقسیم کی گئی۔ ساہیوال کی تاریخ کے عظیم دانشور و صحافی راغب علی سعید کی 30ویں برسی کے موقع پر ایک عظیم الشان سیمینار کا انعقاد تحصیل کونسل ہال میں کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی عقیل اشفاق، ڈائریکٹر تعلقات عامہ ڈاکٹر ریاض ہمدانی، ڈائریکٹر آرٹ کونسل ڈویژنل پریس کلب کے صدر سید طمطراق شاہ محسن شاہی، عبداللطیف خالد جمع، جماعت احرار پاکستان کے جنرل سیکرٹری، چیئرمین چرچ کونسل بشیر ابراہیم، عظیم ڈینیل، مشہور سیاسی و سماجی شخصیت شیخ اعجاز احمد رضا اور سینئر صحافی امتیاز بٹ تھے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ اس موقع پر اسٹیج سیکرٹری کے فرائض قمر عباس بھٹی نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر مہمانان گرامی کا کہنا تھا کہ راغب علی سعید ایک نڈر، ایماندار اور بے لوث خدمت کرنے والے صحافی تھے۔ وہ حق اور سچ پر ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والوں میں سے تھے۔ ان کی صحافت میں گراں قدر خدمات کی وجہ سے اس وقت کے میئر سردار اسد خان بلوچ نے ساہیوال کی مین شاہراہ فریدیہ پارک سے لے کر مسلم بن عقیل کالونی تک ان کے نام راغب علی شاہ روڈ سے منسوب کر دی۔ سینئر صحافی پرنس عنایت، طیب محمود بلوچ جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی، رانا زاہد فاروق صدر کسان بورڈ ساہیوال، مولانا امام بخش ندیم، مولانا منظور احمد طاہر، قاری عبدالباسط، مولانا نور چودھری ضیاء الحق، جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری اور کثیر تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی و دیگر
सियासी और समाजी मजहबी ताजरों क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शिरकत की और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और आखिर में सैयद रागी वली शाह के नाम से मंसूब सील्ड तकसीम की गई। आइए अब चलते हैं टोबा टेक सिंह, जहां पर सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के डायरेक्टर पलवशा बशारत फादर साइमन खुर्शीद भट्टा मजदूरों को मुकर्ररा उजरत, तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतों की फराहमी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पलवशा बशारत, ख़ुसूसी तौर पर मज़दूरों के हक़ के लिए तो सब ने बात की, मैं बात करना चाहूँगी ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, जो कि मर्दों के शाना बशाना उसी तरह से भट्टों पे मेहनत करती हैं और उनको भी पूरा हक़ है कि वो उनको भी जो प्रॉपर जो उनकी इनकम है वो उनको दी जाए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर हम औरत के हकूक़ की बात करें तो औरत पहली दरसगाह है जो बच्चों की को तरबियत देती है। अगर वो दरसगाह को ही उसके पूरे हक़ नहीं मिलेंगे तो वो किस तरह आने वाली नस्लों के हकूक़ जो है वो उनको दिलवा सकती हैं। जबरी मुशक्क़त का ख़ात्मा इस तरह से भी हो सकता है कि जो हमारे भट्टा मज़दूर हैं उनको भी इस चीज़ की आगाही मिले कि वो अपने बच्चों को तालीम की तरफ उनका रुझान पैदा करें, ना कि सिर्फ उनको अपने साथ भट्टों पे मज़दूरी पे लगाएं, बल्कि अगर वो तालीम की तरफ उनका रुझान लाते हैं अपने बच्चों का तो आने वाले वक्त में वो इस जबरी मुशक्क़त से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, ऐसे एक्ट हैं जो उनको नहीं पता और सिर्फ वो इसी वजह से क्योंकि वो तालीम से दूर हैं। दूसरी बात अगर की जाए तो भट्टा मज़दूर जो हैं वो इंटें तो बहुत बनाते हैं दूसरों के घरों के लिए, हमारे घरों के लिए, लेकिन आज वही एक ऐसा तबका है कि जिनका अपना कोई घर नहीं है। तो आज हम इसी चीज़ पर ज़ोर देना चाहते हैं कि जो हमारे लिए इतनी मुशक्क़त कर रहे हैं उनको भी पूरा हक़ है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो बुनियादी सहूलियात जो हैं, तालीम, सेहत, बाकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उनको हासिल कर सकें। मैं फादर साइमन खुर्शीद, चेयरपर्सन टोबा टेक सिंह सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब टोबा टेक सिंह आए हुए सहाफ़ियों का, मज़दूर भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो सदाए आवाज़ मोमिनीन और इंसानियत की खातर आज बुलंद करने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए हैं। इंसानियत की तरक्की, खुशहाली और उनकी बेहतरी के लिए सोचने वाला हर इंसान अल्लाह ताला का पैगंबर की तरह है और आज आपका वहाँ इकट्ठे होकर इंसानियत की बुलंदी और हकूक़ के लिए बात करना यकीनी तौर पर आलम दीन की दी हुई तलीम, हमारे मज़ाहिब की दी हुई इल्हामी किताबों के मुताबिक यकीनी तौर पर ये ऐसी बात है जो अल्लाह ताला हमें तंबी करता और हदायत करता है। आज ख़ुसूसी तौर पर हमारा वहाँ इकट्ठा होना भट्टा मज़दूरों के साथ, उनके साथ यकजहती करना, उनके मसाइल की निशानदही करना और फिर उनकी आबियारी करने के लिए तरीक़ा हार मोमिनीन और आला रुतबा के अपने अफसरान बाला और हुकूमत तक पहुँचाना एक नेक और पाकिस्तान की खुशहाली का निशान है। आज भट्टा मज़दूरों की बात करके हम इस चीज़ की भी दलील दे रहे हैं कि हम सब इंसान एक हैं और सभी के हकूक़ बुलंद और बराबर हैं। अब रुख करते हैं नसीराबाद का। नसीराबाद घोट अली शेर मरी में मुंशी खान मरी की तरफ से एक पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें अमन, भाईचारा, तालीम और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की तलकीन और इत्तफाक और इत्तेहाद तरक्की की अहम शाहराह है, जिस पर चलकर कौमें अपनी मंजिल पाती हैं।
नसीराबाद गोठली शेर मरी में मुंशी खान मरी की तरफ से एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मरी कौमी इत्तेहाद के मरकजी सदर मीर अब्दुल नवी रेजन जी, सूबाई सदर मामा मोहम्मद इब्राहिम मरी, मस्तोंग से माहिर तालीम मियाँ गुलाम अली मरी, सब्बी से हाजी तौर खान, मच से सोहराब खान मरी, झल मक्सी से चंगेज मगरी व दीगर इलाकाई मोतबरीन ने शिरकत की और तकरीब से खिताब भी किया। शुरका ने अपने अपने खिताब में अमन, भाईचारा, तालीम और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि इत्तफाक व इत्तेहाद तरक्की की अहम शाहराह हैं जिस पर चलकर कौमें अपनी मंजिल पाती हैं। मुंशी खान मरी, मीर चल्ला खान मरी व दीगर ने अपने खिताब में जाफराबाद, नसीराबाद, मच, सब्बी, मस्तूंग, झल, मक्सी, कोयटा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मरकजी सदर मीर अब्दुल नबी मरी, सूबाई सदर मामा मोहम्मद इब्राहिम मरी व दीगर रहनुमाओं के बाहमी सलाह मशवरे से सूबाई और जिलाई काबीना का इंतखाब अमल में लाया गया और माहिर तालीम मीर गुलाम अली मरी ने मुंतखब काबीना से हल्फ लिया और मुबारकबाद भी पेश की और इस अज़्म का इजहार भी किया कि मुंतखब काबीना अपनी तमाम तर्जुमादारियों को बरोएकार लाते हुए मरी कौमी इत्तेहाद को आगे लाने में अहम किरदार अदा करेंगे। अब चलते हैं फर्रुखाबाद रोटरी क्लब ऑफ शेखुपुरा आरजुओं के सदर राना वसीम असलम ने डॉक्टर तैयब सत्तार के हमरा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। ये मुहिम 3 रोज तक जारी रहेगी। फर्रुखाबाद रोटरी क्लब ऑफ शेखुपुरा आरजुओं के सदर राना वसीम असलम ने डॉक्टर तैयब सत्तार के हमरा 29 मार्च को पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। ये मुहिम 3 रोज़ तक जारी रहेगी। इस मौका पर रोटरेन वसीम असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पोलियो टीमों से ताउन करें और अपने बच्चों को जिस्मानी माजूरी से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। इसके अलावा फर्रुखाबाद में भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। यूनियन कौंसिल नंबर 85 अर्बन फर्रुखाबाद में टोटल 5777 बच्चों और बच्चियों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। यूनियन कौंसिल इंचार्ज हाफिज उस्मान ताहिर, एरिया इंचार्ज नईमुल हसन और जुनेद खादिम भट्टी की जेर निगरानी 11 मोबाइल टीमें जो कि बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएंगी, जबकि एक ट्रांजिट टीम लारी अड्डा फर्रुखाबाद जबकि एक फिक्स टीम अलनूर कम्प्लेक्स फर्रुखाबाद में पोलियो के कतरे पिलाएगी। इस मौका पर सदर रोटरी क्लब ऑफ शेखुपुरा आरजुओं के सदर ने रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से महकमा हेल्थ वर्करों में पोलियो किट्स, टी शर्ट्स, बच्चों में पेंसिलें, स्टिकर और पंपलेट भी तकसीम किए गए। इस मौका पर रोटरी क्लब ऑफ शेखुपुरा आरजुओं के सदर वसीम असलम, साबिक डिप्टी गवर्नर मलिक इकबाल भी मौजूद थे। अब रुख करते हैं हाफजाबाद का। हाफजाबाद पाक सऊदिया फ्रेंडशिप के चेयरमैन नासिर हबीब ने RTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तमाम पाकिस्तानी भाइयों को अहम पैगाम दिया। आज मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से मुखातब हूँ जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं। वो इसलिए कि कोरोना की वजह से हमारे पाकिस्तानी भाई एहतियात ज्यादा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की फ्लाइटें इस टाइम पे बंद है, जो कि बाकी बांग्लादेश की फ्लाइटें चल रही हैं, जो सऊदी अरब आ भी रही हैं, जा भी रही हैं और उनके नए वीजे वाले, छुट्टी वाले सब लोग आ रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं आ रहे? उसकी वजह हम खुद हैं। हम लोग एहतियात नहीं करते। ठीक है, हमारा भरोसा अल्लाह ताला पर है और हम कहते हैं जो करेगा अल्लाह बेहतर करेगा, खैली वली, लेकिन ये लफ्ज अच्छा नहीं है। हमें एहतियात करनी चाहिए, कोरोना के मामले को सीरियस लेना चाहिए। आज मेरी पाक सऊदी फ्रेंडशिप के फारम के थ्रू सब पाकिस्तानी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है, प्लीज खुदाया सऊदी हुकूमत की हिदायत पर चले, जिससे उनको यकीन दिलाए कि पाकिस्तानी शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। अब फिर रुख करते हैं साहिवाल का। आज साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक अजलास का इनाकाद किया गया, जिसमें लॉकडाउन से पैदा होने वाली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए साहिवाल में जुम्मा और हफ्ते की छुट्टी पर इत्तफाक हुआ, जिसको दोनों तंजीमों के अरकान ने खुशाइंद करार दिया।
साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन ताजराने साहिवाल के सदर हाजी अब्दुल लतीफ, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसिम रफीक, सेक्रेटरी जनरल एहसनुल्लाह भट्ट, शेख इमरान अफजल, चेयरमैन ताज स्टार ग्रुप ने भी शिरकत की, जिसमें खास तौर पर लॉकडाउन से पैदा होने वाली मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए साहिवाल में जुमा और हफ्ता की छुट्टी पर इत्तफाक हुआ, जिसको दोनों तंजीमों के अरकान ने खुशाइंद करार दिया। एक बार फिर चलते हैं टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह की जरखेज ज़मीन तमाम फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। मौसम बहार की आमद के साथ ही खानपुर में बेर की फसल पककर तैयार। टोबा टेक सिंह के बेर पाकिस्तान समेत बैरून मुल्कों में भी यकसा मकबूल है। बेरी का फल खूबसूरत होने के साथ साथ खुश जायका भी है। आइए देखते हैं टोबा टेक सिंह से अनवार चौधरी की ये रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह की जमीन तमाम फसलों की पैदावार के साथ साथ बागात के लिए भी बहुत जरखेज है। टोबा टेक सिंह के नुआही गाँव 393 चीम बे खानपुर के बेर का फल अंदरून मुल्क समेत बैरून मुल्क भी यकसा मकबूल है। मौसम बहार की आमद के साथ ही बेर का फल पक कर तैयार हो जाता है। बेर का फल खुशनुमा होने के साथ साथ खुश जायका भी है। बेर का फल पक कर तैयार होने पर सैकड़ों मेहनत कशों का रोजगार भी खुल जाता है। मेहनत कश बेर बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੇਰ ਵੇਚੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬੇਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾनपुर की एक सगात हैगी। खानपुर में सिंधी, पेंदी और काठे बेरों के अलावा हर नस्ल का खुश जायका बेर का फल मिलता है। सौगात के तौर पर अपने अजीजों अकारब को बतौर तोहफा हर साल बेचते हैं। यहाँ से मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए भी बेर ले जाऊं।